Hello everyone, welcome back to my channel. So today we'll be studying about Bhagat Singh. Bhagat Singh was an Indian revolutionary considered to be one of the most famous martyrs of the Indian freedom struggle. He is also believed by mostly one of the earliest Marxists in India and has been labeled so by the Communist Party of India, Marxist. He was one of the leaders and founders of the Hindustan Socialist Republican Association. Bhagat Singh an Indian revolutionary थे. He was not a politician, he was a revolutionary or a freedom fighter. He is one of the most famous martyrs of the Indian freedom struggle. लोग ऐसा मानते हैं कि he was one of the earliest martyrs of the India और उन्हें ऐसा लेबल किया गया था by the Communist Party of India. इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को फॉर्म किया था. Bhagat Singh was born in a Sikh family in village Banga in the Lalpur district of Punjab. He was the third son of Sardar Kishan Singh and Vidyavati. Bhagat Singh's family was actively involved in freedom struggle. His father Kishan Singh and uncle Ajit Singh were members of Gadar Party founded United States to oust British rule from India. Family atmosphere had a great effect on the mind of young Bhagat Singh and patriotism flowed in his veins from childhood. भगत सिंह का जन्म एक सिख फैमिली में हुआ था. वो बंगा विलेज से थे जो कि पंजाब के लैलापुर डिस्ट्रिक्ट में है. इट इज़ नाउ इन पाकिस्तान. ही वॉज द थर्ड सन ऑफ सरदार किशन सिंह और उनकी माता का नाम विद्यावती था. भगत सिंह की फैमिली जो थी वो स्टार्टिंग से ही फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी. उनके फादर किशन सिंह और उनके अंकल दैट इज़ चाचा अजीत सिंह वो गदर पार्टी के मेंबर्स थे जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट काम कर रही थी. तो फैमिली एटमॉस्फेयर का उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था और बचपन से ही उनके अंदर पेट्रोटिज़म की भावना भरी हुई थी. While studying at the local DAV school in Lahore in 1916, young Bhagat Singh came into contact with some well-known political leaders like Lala Lajpat Rai and Raj Bihari Bose. Punjab was politically very charged in those days. And in 1991, when the Jallianwala Bagh massacre took place, Bhagat Singh was only 22 years old. The massacre deeply disturbed him. On the next day of the massacre, Bhagat Singh went to the Jallianwala Bagh and collected soil from the spot and kept it as a memento for the rest of his life. The massacre strengthened his resolve to drive the British out from India. उन्होंने अपनी पढ़ाई एक लोकल DAV स्कूल में कंप्लीट करी थी जो कि लाहौर में था. इन 1916 जो यंग भगत सिंह थे वो कुछ वेल नोन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कांटेक्ट में आए जैसे कि लाला लाजपत राय और राज बिहारी बोस. तो उस टाइम पर जो पंजाब था वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली चार्ज्ड और बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव था. 1919 में जब जलियांवाला बाग मसैकर हुआ तो उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डीप हार्टन थे और बहुत ही ज़्यादा वो डिस्टर्ब हुए थे इस इंसिडेंट से. एंड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ दैट मसैकर उन्होंने वो जलियांवाला बाग वाली जगह पे गए, वहाँ से सॉइल कलेक्ट करी और उसे एज अ मोमेंटो रखा अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए ताकि उनका जो मकसद है ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने का वो और ज़्यादा गहरा हो गया था थ्रू दिस इंसिडेंट. In response to Mahatma Gandhi's call for non-cooperation against the British rule in 1921, Bhagat Singh left his school and actively participated in the movement. महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बुलाया था इन 1921 तो उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़कर उस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था. इन 1922 when Mahatma Gandhi suspended the non-cooperation movement against the violence at Chauri Chaura in Gorakhpur, Bhagat was greatly disappointed. His faith in non-violence weakened and he come to the conclusion that armed revolution was the only practical way of winning freedom. 1922 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट इन गोरखपुर, तो उस बात से जो भगत सिंह थे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और उनका नॉन वायलेंस पर जो बिलीव था वो चला गया था. एंड ही वॉज ऑफ द बिलीव कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो वो सिर्फ एक आर्म्ड रेवोल्यूशन से ही होगी, वो अहिंसा के थ्रू तो नहीं होगी. To continue his studies, Bhagat joined the National College in Lahore, founded by Lala Lajpat Rai. At this college, which was a center of revolutionary activities, he came into contact with revolutionaries such as Bhagwati Charan Sukhdev and other. उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और नेशनल कॉलेज जो कि लाहौर में है वहाँ पर उन्होंने अपना लॉ कंप्लीट करा. यहाँ इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलती रहती थी तो वहाँ वो कॉन्टैक्ट में आए थ्रू वेरियस रेवोल्यूशनरीज लाइक भगवती चरण सुखदेव एंड मैनी अदर्स. In 1928, he attended a meeting of revolutionaries in Delhi and came into contact with Chandrasekhar Azad. The two formed the Hindustan Samajwadi Prajatantra Sangh.
1928 में उन्होंने रेवोल्यूशनरीज़ की एक मीटिंग अटेंड करी दिल्ली में, और वहाँ पे वो मिले चंद्रशेखर आज़ाद से, और उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ। In February 1928, a committee from England called Simon Commission visited India. While protesting against the Simon Commission in Lahore, Lala Lajpat Rai succumbed to injuries. Bhagat Singh determined to avenge Lala Lajpat's right by shooting the British official responsible for killing Deputy Inspector General Scott. He shot down Assistant Superintendent Saunders instead, mistaking him for Scott. Bhagat Singh had to flee from Lahore to escape death punishment. फरवरी 1928 में एक कमेटी बनाई गई थी इंग्लैंड से साइमन कमीशन के नाम से, ताकि ब्रिटिशर्स का क्या कंट्रोल है इंडिया के ऊपर और उसमें क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए उस बात के लिए। और इस साइमन कमीशन के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में। तो उस टाइम पर लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई थी प्रोटेस्ट के दौरान, और इसी बात से अवेंज होकर उन्होंने लाला लाजपत राय की डेथ के बदला लेने की कोशिश करी बाय शूटिंग द ब्रिटिश ऑफिशियल, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ था, ये प्रोटेस्ट हुआ था। और वो जनरल स्कॉट को मारना चाहते थे, बट इंस्टेड ऑफ किलिंग जनरल स्कॉट उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स को गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ा था लाहौर से, ताकि वो डेथ पनिशमेंट उन्हें ना मिले। ऑन अप्रैल 8, 1929, भगत सिंह एंड Batushwar Dutt threw bombs in the Central Assembly Hall while the assembly was in session. अप्रैल 8, 1929 में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंके, जबकि असेंबली का सेशन जो था वो कंटिन्यू था। द बॉम्ब्स डिड नॉट हर्ट एनीवन, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त deliberately courted arrest by refusing to run away from the scene. Meanwhile, the killers of Saunders were identified by the treachery of Bhagat Singh's friend, who became approvers. तो बॉम्ब से किसी को हर्ट तो नहीं हुआ, बट वो वहाँ से भागे नहीं, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो सॉन्डर्स की डेथ के लिए उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया, जो कि उनके दोस्त ने ही उन्हें आइडेंटिफाई करा था कि हाँ भगत सिंह ही है जिन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स को मारा था। एज अ अप्रूवर उन्होंने ये बात को जस्टिफाई करा था, एंड ही वॉज वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ भगत सिंह। इन जेल ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ फेलो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बाय जेल अथॉरिटीज़। जब उन्हें जेल में डाला गया तो वो एक हंगर स्ट्राइक पर चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीटमेंट हो रहा था। ऑन October 7, 1930, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस बाय स्पेशल ट्राइब्यूनल फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। अक्टूबर 7, 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया, क्योंकि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। इस रीज़न को देकर इनको डेथ सेंटेंस ऑर्डर किया गया बाय द कोर्ट। डिस्पाइट ग्रेट पॉपुलर प्रेशर एंड न्यूमरस अपील्स बाय पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया, भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स वर हैंग्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 23, 1931। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद फ्रॉम द पब्लिक, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू, अपील के थ्रू, तब भी भगत सिंह और उनके एसोसिएट दैट इज़ सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी दे दी गई थी इन द अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 23, 1931। हिज सपोर्टर्स हु हैड बीन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द हैंगिंग इमीडिएटली डिक्लेयर्ड हिम एज शहीद और मार्टर। जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनकी फांसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उन्होंने तुरंत उन्हें शहीद डिक्लेयर किया गया। सिंह वॉज सेरेमेटेड एट हुसैन वाला ऑन द बैंक्स ऑफ सतलज रिवर इन लाहौर, और उनके जो लास्ट रिचुअल्स थे वो हुसैन वाला सतलुज रिवर के बैंक पे हुए थे, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है। So this was it for this video. Next we'll be reading about Lal Bahadur Shastri. I hope you're able to understand it. Thank you so much for watching this.